what are unwritten law at our workplace? At our workplace. Okay, yeah. Basically, this question is actually asked to your co-worker. Okay, यानी co-worker, colleague. Okay, office colleague. So the question is that कि what is exactly unwritten laws, यानी ऐसे कुछ ऐसे law है जो लिखे नहीं है अब तक in our workplace. So unwritten laws. चलो मान लेते कि एक ऑफिस में कौन कौन से लॉज होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइक अ लॉज शुड वी सपोज टू फॉलो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट. या ऑफिस में कहीं बताते नहीं है कि यू हैव टू डू योर रिस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह. या बट हाँ, समहाउ समवेयर बताते हैं, बट स्टिल इज दैट कहीं लिखा नहीं होता. बट यू शुड सपोज टू बी फॉलो दैट. अगर आपके सीनियर है, अगर आपका सीनियर आपसे 2 साल छोटा है, 3 साल छोटा या 5 साल छोटा है, वट एवर इट इज, यू शुड सपोज टू बी से हिम सर, मैम. ओके, क्योंकि यू हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की. ओके, और ऑफिस में ऐसा ही होता है. यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो दैट. इससे क्या होता है कि इससे आपकी पोलाइटनेस रिप्रेजेंट होती है. एंड एज ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ प्राइवेट सेक्टर थ्रू. ओके, इफ़ यू वेंट टू द गवर्नमेंट तो वहाँ पे अलग ही खेल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ प्राइवेट थिंग. तो वहाँ पे कैसा होता है ना, यू शुड सपोज टू बी शो दम रिक्वेस्ट दैट की रिस्पेक्ट, कि आप कौन है, आप पोलाइट है और आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर चीज़ों को ढंग से समझते हैं. ओके, एंड हाउ वी सपोज टू शो द रिस्पेक्ट इज दैट द वे दैट वी से हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. ओके, वहाँ पे हम नहीं कह सकते भाई कैसा है लौड़े तू, इवन इफ दैट फ्रेंड इज एक्चुअली फ्रॉम अवर कॉलेज. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं. हाँ, लाइक बेसिकली इज दैट फ्रेंड इज एक्चुअली आपसे काफ़ी क्लोज है और काइंड ऑफ लाइक दैट कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है. तो एट दैट टाइम यू कुड से वट एवर यू वॉन्ट. ओके, बट अगर the person who is actually you don't really knew him, he don't really know you, the way that you connect with that particular person through the office way, so obviously you have to say him sir or ma'am. Okay, yeah, even if senior or colleague, definitely you have to say sir or ma'am. It's really essential. Communication, it is really essential. When you are in college school, आप जो चाहे मुंह में बक सकते हो. You don't really have any kind of like a something really that की rules to say नहीं. But ऑफिस में जब जाते हो, your communication is a kind of like a something really तलवार. तलवार, yeah, might be a तलवार, might be it is really essential to understand how do you supposed to communicate. Okay, because of that कि the way that you do communication, it represent that ki who you are and what you are. And as also when you are do communication, you also tell that ki what kind of like a something really a qualification that you had. What do you mean by that? Let's example is that कि आप अगर ऑफिस में जाते हो and basically you just introduce yourself with the English. Okay, hello sir, my name is this, I am actually from this, and I am really excited to work here, and yes, I am right now intern, but I am really enthusiastic to work with you, and I just wants to understand the what is actually happening in this thing. So can you guide me a little bit of it? I'm not really taking that much time of you. I know you are that much busy, but still just tell me what should I supposed to do, and I try to make it as good as possible as I can. Okay, so this kind of like a something way that you could talk to the people. Communication. Okay, जब आप अपने बातों से लोगों को impress करते हो through the English, definitely I'm not talking about that कि English is kind of like a something really language that you should supposed to be, but still ऑफिस में ऐसा ही होता है. ऑफिस में लोग impress होते हैं the way that you talk. ओके, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, इट इज़ रियली एसेंशियल टू हैव अ कम्युनिकेशन विद इंग्लिश, क्योंकि उससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है. एंड व्हेन यू हैव अ इन्फ्लुएंस, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग हेल्पफुल फॉर यू टू बिल्ड अप योर करियर. आपका प्रमोशन ज़्यादा हो सकता है, आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी मिल सकते हो, या पीपल माइट नो यू, और शायद बड़े लोगों की आप पे नज़र जा सकती है, एंड दे माइट फाइंड दैट कि हाँ चलो ये बंदा अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, सो probably we gave him chance to kind of like run the PPT or whatever it is. So it is really essential to communication. Yeah, I am actually in that profile, or basically I know that what is actually the wrong thing happened. Yeah.
Collaboration, yeah. It is really essential to understand the collaboration. Important thing is that who you are, what you are. There is a two kind of like a person in our life: introvert, extrovert. Introvert, extrovert. These are not kind of like a things that you cannot change. You can change. Obviously, हर एक इंसान एक introvert होता है. He didn't really know about things and that. But if you do know things about so many things, then you are became kind of like a pro, and it will become little bit of extrovert. What do you mean by that? Like basically अगर आप ऑफिस में जाते हो, पहला दिन है, यू माइट नॉट नो एवरीथिंग अबाउट इट, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में. सो प्रॉब्ली यू आर बिटरली इंट्रोवर्ट, आप किससे बात नहीं करोगे, प्रॉब्ली जिससे भी बात करोगे रिलेट अबाउट द वर्क एंड यू डू योर वर्क, दैट्स इट. आपको बस इतना ही काम रहेगा. बट अगर आप इफ़ यू आर डूइंग दिस वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर 5 साल, ओके, तो 5 साल के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ओके, लाइक बेसिकली ऑफिस में आते ही आप एक तरह से पहले चाय पियोगे, दोस्तों से बात करोगे, ऑफिस लोगों से बात करोगे, इसकी बात होगी, उसकी बात होगी, थिंग्स एंड दैट एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क. ओके, सो बेसिकली इज दिस थिंग, पहले आप इंट्रोवर्ट थे बट 5 साल के बाद आप एक्सट्रोवर्ट हो गए. ओके, सो बेसिकली आई एम नॉट गोना से दैट कि इंट्रोवर्ट इज अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग लाइक दैट कि आप पैदा होते हो और उसके साथ ही मर जाते हो. नो, डेफिनेटली नॉट. ओके, ये चेंज होता है. ओके, वक्त के साथ ये सब चेंज होता है. इट इज़ रियली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कोलाब्रेशन. कोलाब्रेशन इज एक्चुअली रिलेट विद द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप एक ऐसे इंसान हो जो इंट्रोवर्ट हो, यू आर काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग वेरी स्केयर्ड टू टॉक टू अदर. ओके, तो उस वक्त आप इजीली किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर पाओगे. और मे बी somebody asked to collaborate, so you are kind of like a something really playing a very least role in that particular team, which is not really good. Okay, इंट्रोवर्ट होना, ओके, कोई बात नहीं, हो सकते हो. इट्स यू आर डिडंट रियली नो अबाउट थिंग, यू डिडंट रियली नो अबाउट दैट, कोई बात नहीं. बट जस्ट गो इन टू दैट. ओके, आप आपकी जो भी टीम है या उस टीम में जो भी टीम लीडर है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम वक्त बिताओ. ओके, थोड़ा उनके साथ काम करो. एट द बिगिनिंग यू आर इंट्रोवर्ट, या still you could say that ki sir, I am not really that much comfortable to communicate with English, can I communicate with the Hindi, I'm literally kind of like that. He would understand. Okay, आप just कोशिश करो, धीरे 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 यू विल बिकेम एक्सट्रोवर्ट. और कोलैबोरेशन के लिए एक्सट्रोवर्ट होना भी ज़रूरत नहीं है. इट्स रियली एसेंशियल टू डू दैट कि आप अपना काम कितना अच्छा करते हो. ओके, एसेंशियल टू फोकस ऑन द वर्क, बट एज ऑल्सो do this thing as also. Communication, collaboration is also really matter. Okay, next thing is that punctuality. Yeah, punctuality का मतलब होता है कि जो सच है वो सच है. Like basically is this thing, ऑफिस में, सॉरी, स्कूल में, कॉलेज में आप जो चाहे जितना चाहे झूठ बोल सकते हो, बट ऑफिस में आप झूठ नहीं बोल सकते. बिकॉज आपका झूठ रिलाई कर रहा है कंपनी के एफर्ट्स पे, आउटपुट है. ओके, सो इट इज़ रियली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ योर कंपनी. एज ऑल्सो आर यू एसेट और नॉट. एसेट का मतलब होता है कि कंपनी के लिए एक वैल्यूबल पर्सन, और उस वक्त आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पंक्चुअल का मतलब होता है कि आप झूठ नहीं बोलना है. बी काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग. अगर किससे गलती हो रही है तो आप प्रॉपरली उनकी गलती बताओ. अगर आपसे गलती हो रही है तो आप भी प्रॉपरली गलती बताओ. ओके, एज अ ह्यूमन वी डू मिस्टेक्स. ओके, एंड बेसिकली मिस्टेक इज अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली लर्निंग कर्व, एंड दैट वी शुड सपोज टू बी अंडरस्टैंड. एज अ कंपनी प्रोफाइल एवरीवन नोज दैट कि हाँ, स्टार्टिंग में एम्प्लॉय गलती करेंगे. ओके, सो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग अवर सेल्फ दैट कि मैंने ये गलती नहीं की, इट माइट नॉट गुड फॉर योर करियर. इट इज़ रियली एसेंशियल टू डू दैट कि आप जो भी कर रहे हो, जितना कर रहे हो, कितना अच्छा, कितना बुरा, या गलती कर भी रहे हो, यू शुड टेल देम सर मेरे से ही गलती हो गई है, आई विल ट्राई टू फिक्स दैट थिंग. क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो? यू जस्ट आस्क देम. ओके, वो समझ जाएंगे. पंक्चुअलिटी इज़ रियली एसेंशियल. उससे आप रिप्रेजेंट करते हो कि हु यू आर, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कि आपके अंदर कितनी लाइक बेसिकली द अदर माइट पर्सन दैट की ट्रस्ट. ओके, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काइंड ऑफ लाइक अ समथिंगली वे मच स्मार्टर दैन दैट. ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए भी काम करवा के लेते हैं. ओके, सो इट इज़ रियली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड और फाइंड आउट दैट हु आर दोज पर्सन एंड या इट्स काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग लाइक दैट ना. ये चीज़ें आपको खुद समझनी चाहिए. ऑफिस इज काइंड ऑफ लाइक अ थिंग दैट कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिस काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग द
द न्यू चैप्टर, अ न्यू लाइफ, ओके। और इसके बारे में कोई सिखाता नहीं है, ना ही स्कूल में ना ही कॉलेज में, क्योंकि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इट्स लॉट ऑफ थिंग रिक्वायर्ड इन द वर्क प्रोफाइल, और हमें ये स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाया जाता. इट्स बिट रियली सैड रियलिटी बट दैट इज ट्रू. यस. देन वर्क एथिक. या वर्क एथिक इज काइंड ऑफ लाइक अ सम रियली इक्विवेलेंट. ओके. अपने काम को एक तरह से वैल्यू दो, उसके लिए पंक्चुअल रहो, उसके लिए एक तरह से लाइक बेसिकली दिस थिंग कि आपके काम के वक्त आप सिर्फ काम करो. ट्राई नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन पर्टिकुलर सच थिंग और दैट थिंग. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड जस्ट या वर्क के बारे में, अपने काम के बारे में कोई काम इज काम. Confidentiality. Yeah, sometimes it's really essential to understand that your work might have some sort of thing that is bitterly confidential. यानी आपको खुद से छुपाना पड़ता है, दूसरों से छुपाना पड़ता है, बिकॉज योर वर्क इज काइंड ऑफ लाइक दैट. ओके. तो कॉन्फिडेंशियल क्लासीफाइड होना भी ज़रूरी होता है. ओके. उस वक्त आप ये सारी चीज़ें नाई बीवी को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी नहीं बता सकते हो, इवन इफ यू वांट टू नो. ओके. सो इट्स इज really really different. Okay. Adaptability. Adaptability मतलब किसी भी चीज़ में एकदम समझ आना. यानी some of the like there are multiple department in the company, finance department, design department, lots of department. Each department have a kind of like a something different role to do that work. मान लेते कि आपका प्रमोशन हो गया इन some sort of different department जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि किस तरह से काम होता है. Important thing is that कि अगर आपकी पोस्टिंग हायर में भी हो गई हो, स्टिल यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट द थिंग. कहाँ से होता है, कैसे होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो. ओके. एट द बिगिनिंग इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सम लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू हैव क्वालिटी ऑफ अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप खुद जाओ, खुद को समझो, लाइक बेसिकली हैंग आउट विद द एम्प्लॉयज़, समझने की कोशिश करो कि कैसा काम होता है, टॉक टू देम वगैरह वगैरह. इट्स काइंड ऑफ लाइक उससे आप समझ पाते हो. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन दैट कि हाँ चलो ये मुझे काम बताएगा फिर मैं काम करूँगा, देन यू माइट नॉट अडाप्ट विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल. या अडाप्ट होना भी ज़रूरी होता है. ओके. खुद में वो चेंजेस लेके आना और उन चेंजेस को वर्क प्रोफाइल में इंटरेक्ट करना. इट हैज़ टू बी. ओके. ये कोई सिखाता नहीं है डूड. या लाइक आई लर्न दिस थिंग while I was doing job for almost like a 5 year. ओके. 5 साल काम करने का मुझे रियलाइज़ हुआ ये सारी चीज़ें. सो या प्रोफेशनलिज्म. यस. रियली रिमेंबर दैट कि यू आर प्रोफेशनल. ओके. दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि ये मिस्टेक मैंने की है while I was doing my job and it's it's literally kind of like a something really disaster in my life, but it get me kind of like that कि हाँ ये एक बहुत important factor है. as a professionalism you have to act as a professionalism, क्योंकि important thing is that कि the sad reality of the office culture is that कि कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉयज़ या कोई भी ऑफिस कलीग, ये ऑफिस कलीग ही है, ये आपका दोस्त नहीं है. Yeah, some of the office colleague might be become something really very true friend, but trust me, in the end it is really essential that ki like from the private sector. Okay. यहाँ पे हर चीज़, हर लोग एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश में रखते हैं. ओके. इट्स अ रेस. ओके. एंड एवरीवन वांट्स टू विन. ओके. आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर मुझे रेस जीतना है तो ये इंसान मेरे लिए रुकेगा या ये इंसान मेरे लिए. नो, डेफिनेटली नॉट. एज ऑल्सो इज दिस थिंग, प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनलिज्म ही करना चाहिए. ओके. ये यू शुडंट सपोज टू बी वर्क एज अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दैट कि ऑफिस में या कॉलेज में जिस तरह से आप हैंग आउट करते थे दोस्तों के साथ, ऑफिस कलीग के साथ उतना हैंग आउट नहीं कर सकते. हाँ, ऑफिस कलीग में भी बहुत सारे पार्टीज होती है, पिकनिक होते हैं, दिस एंड दैट स्टिल, बट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ ट्रूथ. ओके. अगर आप गूगल या फेसबुक या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो हाँ, तो चलो कोई बात नहीं ना, बिकॉज ऑफ दैट कि यू हैव दैट मच क्रेडिट और काइंड ऑफ लाइक दैट कि आप एक काइंड ऑफ लाइक ऐसे इंसान हो जो आईआईटी से निकल के आए हो और आपके पास बहुत सारे कंपनी के प्रोफाइल्स है, कंपनी के जॉब्स की गारंटी है. तो एट दैट टाइम या यू कुड डू वट एवर यू वॉन्ट. बट आप एक ऐसे इंसान हो जब आपके लिए पूरी लाइफ की जिम्मेदारी वो जॉब है. ओके. एंड एज ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू रिस्क. ओके.
एज ऑल्सो यू जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड, तो उस इंसान में प्रोफेशनलिज्म का एक अलग मीनिंग होता है, उस मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, पर्सन इज वर्किंग विथ यू इज योर ऑफिस कलीग, इज नॉट योर फ्रेंड। ओके, वो आपका ऑफिस कलीग है, उससे आपको सर कहना है, आप उन्हें सर कहना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे है सर, सर मुझे ये काम करना है, किस तरह से करूँ, प्रॉब्लम होता है तो उनको बताओ। बी हैव काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग बिल्ड अ रिलेशनशिप एज अ प्रोफेशनलिज्म। ओके, हाँ। और जब आपको लगता है कि इज़ दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि ये मेरा दोस्त करने के लायक है, देन यू माइट, इट्स अप टू यू डूड। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, आप, ये आप पे डिपेंड करता है। बट लाइक प्रोफेशनलिज्म इज़ अ प्रोफेशनलिज्म, इट्स अ रेस। ओके, यहाँ यहाँ कोई भी किसी के लिए कोई नहीं रुकता, नो नो वन एट ऑल। सो जस्ट act professional, it really help you a lot। इंटेग्रिटी, या इंटेग्रिटी का मतलब भी ये भी होता है। ओके, मतलब कि आप एक ऑफिस के मैनेजर हो, आप एक हायर पोस्ट को संभालते हो, और बेसिकली देयर आर सम सर्टन पीपल अबव यू, दे आर आस्क यू सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि एक छोटे एक लेवल का काम है। ओके, तो इंटेग्रिटी की, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, ये कुछ काफ़ी, आई डोंट नो, इट्स आई थिंक आई माइट नॉट अंडरस्टैंड विद दिस थिंग। ओके, इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा थिंग है। ओके, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि खुद की रिस्पेक्ट खुद करना। ओके, आप किसके लायक हो, आप कंपनी के एसेट हो या नहीं हो। ओके, लाइक बेसिकली अगर आपको काम ऐसे दिखाया जा रहा है कि लाइक बेसिकली यू आर द मैनेजर और आपके सीनियर ने कहा है कि भाई तू आज ऑफिस में झाड़ू मार ले, आर यू एबल टू डू दैट? नहीं ना। ओके, क्योंकि झाड़ू मारना, सफाई करना वो पियून का काम होता है, आपका काम नहीं होता है। आप एक मैनेजर हो, आप टीम को मैनेज करोगे। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दैट कि सर ये इंटीग्रिटी का सवाल है ना। ओके, लाइक यू शुड सपोज से हाउ आई सपोज टू डू दैट। हाँ चलो, एट द बिगिनिंग थोड़ा एक बार कर लेंगे। ओके, फॉर द ऑफिस कल्चर एंड थिंग्स लाइक दैट, चलो फॉर द सीनियर के कहने के बाद। बट एवरी टाइम द सीनियर आस्क यू डू दैट, तो आप सीनियर से सवाल जवाब नहीं करोगे, आप उनसे क्लियरली बोलोगे कि सर आई एम द मैनेजर, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द कंपनी, नॉट क्लीन द कंपनी। ओके, सो if that person understand you and your integrity, he would definitely understand that, और वो आपको कभी ऐसा काम नहीं बताएगा। but if that person didn't really understand, then probably it's really important to you कि आप वहाँ से निकल जाओ। ओके, क्योंकि आपका सीनियर ही आपका इज्जत नहीं करेगा तो आपके जूनियर आपकी इज्जत कैसे करेंगे? इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट गुड फॉर यू, मेंटल स्ट्रेस होगा, वो अलग बात है। तो I don't know, it's up to you, how do you handle your situation? Yes, but yeah, and next thing is a continuous improvement। definitely improvement तो बहुत ज़रूरी होता है। सो दीज आर काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि अनरिटन लॉज, ये कोई बताता नहीं है बट आपको ये फॉलो करना चाहिए इन द ऑफिस वर्क। ऑलराइट, सो दिस इट, दिस देन, एंड थैंक यू।